وقدنا وموانا وملجانا الشيخ معين الدين احمد حسن سندری ثم اجمیری معین الملت والدین وآیت من آیات رب العالمین معجزت من معجزات سید المرسلین حجت اللہ فی الارضین سیدنا سندنا الشیخ الامام احمد رضا خان مجدد الملت والدین وعلى قطب العالم المعروف والمشهور والمشتهر بالمفتي الأعظم سيدنا سندنا الشيخ مصطفى رضا خان أما بعد فأعوذ وقال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين آمنت بالله. آئیے سب سے پہلے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ساری کائنات کے مرکزی عقیدت گنبد خضرا کے مکی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں بآواز بلند نہدِ درود پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. خطبہ مبارکہ مقدسہ مطہرہ کے بعد قرآن مقدس کی دو آیتیں ان کی تلاوت سے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ اور ہم نے آسمان دنیا آسمان اول کو چراغوں سے مزین کر دیا ہے. دوسری آیت کریمہ علمون لیکن منافقوں کو پتہ نہیں. وقت نکال کر کے جاتا ہوں. یہ ہمارے تمام علماء کرام منبر پہ ہیں قریب قریب جو مجھے پہلے سے جانتے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ میں ایک مدرسے کا چھوٹا سا مدرس تھی. دارالعلوم الحق چرہ محمد پور فیض آباد کی درسگاہ کا ایک چھوٹا سا خادم اور بحمدہ تعالی عالم اسلام کی اکبری شخصیت خواجہ علم و فن خواجہ مظفر حسین صاحب رضوی اور میدان درس و تدریس کی ایک قداور شخصیت جامع معقول و منقول حاوی فروع اصول حضرت علامہ بالفضل مولانا محمد اقبال احمد صاحب قبلہ قادری مرکز العلی جو یہاں سے تھوڑے سے فاصلے کے رہنے والے ہیں. تو عرض یہ کرنا میں ایک مدرس ہوں لہذا جن حضرات کو اٹھ کر کے جانا ہے بھی واقعی ضرورت ہے چونکہ میں جیسے پہنچا پتہ چلا مجمع بہت زیادہ آ چکا ہے. تو انسانی فطرت ہے اس اعتبار سے ضرورتیں آپ حضرات کو پڑھ سکتی ہیں اور پڑھتی ہیں. وہ جا سکتا ہے البتہ تقریر شروع ہو جائے تو اس بیچ جانے کی کوشش نہ کریں. سننے کا انداز نہیں ہے یہ انداز جگہوں کی ہیں الگ الگ مقامات کی ہیں. ایک مناسبت کی بنیاد پر میں نے دو آیت کی تلاوت کی ہے. آپ یہ قطعی نہ سوچیں کہ ایک آیت پڑھنے کے بعد تو 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ ہمارے خطبہ تقریر فرماتے ہیں. دو آیت پڑھی گئی ہے الہی خیر گردانی 72 شاہ جیلانی معلوم نہیں کتنی دو آیتیں پڑھی ہیں. ربیع النور شریف کی ابھی تک جہاں تک مجھے معلوم ہے اس کی کوئی تحقیق نہیں ہوئی. یہ 30 ربیع الاول شریف کی تاریخ ہے
जिसमें हम और आप हाजिरी की सआदतें हासिल कर रहे हैं। इसी मुनासिबत से मैंने आयत मुबारका पढ़ी है, वलक़द ज़य्यना समाअद दुनिया बिमसाबीह, और हमने आसमान अव्वल को, आसमान दुनिया को चरागों से मुज़य्यन कर दिया है। मिंबर रसूल पर मुअक्कर उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, आप इनकी ज़ियारत फरमाएं और हक़ीर की थोड़ी देर गुफ्तगू समाअत करें। हज़रत, मकान आप भी बनाते हो, मकान हम भी बनाते हैं। ये जुमला मोतरज़ा न समझिएगा, 5-10 मिनट बड़ी संजीदगी के साथ आपको सुनना है। इंशाअल्लाह तकरीर बिल्कुल मरबूत होगी। अर्ज ये कर रहा हूं कि मकान आप भी बनाते हो, मकान हम भी बनाते हैं। हमारे करम फरमा हज़रत अल्लामा बिल-फज़्ल मौलाना ज़हीर अहमद साहब क़िबला मद्दज़िल्लुहुल आली ने एक शानदार मकान बनाया। हज़रत अल्लामा बिल-फज़्ल मौलाना सिद्दीक़ अहमद साहब दामद बरकातुहुल आलिया, उन्होंने एक अच्छा मकान बनाया। हज़रत अल्लामा शाहिद साहब, अल्लामा महबूब साहब, बहुत सारे उलमाए किराम जिनकी मुलाकात से आज मैं अपने आप को मुशर्रफ कर रहा हूँ। इन उलमाए किराम से आप पूछें, आदमी जिंदगी गुजारने के लिए मकान की तामीर किया करता है। एक गरीब इंसान अपनी गुर्बत और इखलास की बुनियाद पर घास फूस इकट्ठा करके वो छप्पर का मकान बनाया करता है। उससे ऊपर की जिंदगी गुजारने वाला और अच्छा मकान बनाया करता है। उससे ऊपर की जिंदगी गुजारने वाला और शानदार मकान बनाया करता है। लेकिन हज़रत, एक सेठ साहूकार जमींदार इंसान अपनी हैसियत के मुताबिक, अपने माल के मुताबिक शानदार बिल्डिंग बनाया करता है, शानदार महल बनाया करता है, बेहतरीन कला की शक्ल में इमारत तामीर किया करता है। लेकिन आइए जरा सा देखें, मकान आप भी बनाते हैं, मकान हम भी बनाते हैं। खल्लाक़े कायनात ने एक बहुत बड़ा मकान बनाया है कि उसी में हमारा भी मकान है, उसी में अल्लामा सिद्दीक़ साहब का मकान है, अल्लामा ज़हीर साहब का मकान है, अल्लामा शाहिद साहब का मकान है, अल्लामा महबूब साहब का मकान है, अल्लामा फैज़ुल हसन साहब का मकान है। उसी में इनका मकान भी है, उसी में आपकी दुकान भी है, उसी में आपका मेडिकल सेंटर भी है, उसी में शॉपिंग सेंटर भी है, उसी में रेलवे स्टेशन भी है, उसी में एयरपोर्ट भी है, उसी में आपके दीगर कारखाने भी हैं। आप सोच रहे होंगे आखिर खुदा ने वो मकान कितना बड़ा बनाया है, वो मकान कितना बड़ा बनाया। वो मकान इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि उसी में सारी चीजें तो है ही है। उसी में चश्मे हैं, उसी में दरिया है, उसी में दामने हिमालय है, उसी में हिमालय की पहाड़ियां हैं, उसी में झीलें हैं, उसी में नहरें हैं, उसी में समंदर है, उसी में तालाब है। आप कहोगे आखिर वो मकान कितना बड़ा है। वो मकान हमने नहीं देखा, नहीं वो मकान आपने देखा भी है, उसी मकान में आप रहते भी हैं। वो मकान यानी ये सारा जहान, ये सारी दुनिया, ये सारा आलम, ये अल्लाह को, सारे इस जमीन को, इस सारी जमीन को खल्लाक़े कायनात ने उस मकान के लिए फर्श बना दिया है और तमाम आसमानों को खुदा ने उस मकान का छत बना दिया। वो मकान इतना बड़ा है, सारी जमीन को अल्लाह ने फर्श बनाया और सारे आसमान को छत बनाया। लेकिन हज़रत, अब आइए जरा सा देखें, मकान आप जब बनाया करते हो, रोशनी के लिए आप गैस सिलेंडर का नस्ल करते हो, जनरेटर के जरिए रोशनी हासिल किया करते हो, आप बिजली के जरिए बल्ब जलाया करते हो। खल्लाक़े कायनात में इतना बड़ा मकान बनाया है। दिन में रोशनी का इंतजाम सूरज के जरिए है, रात के लिए चांद है, रात के लिए सितारे हैं, रात के लिए कहकशा है। आप जब मकान की तामीर किया करते हो, चाहे वो भारत का रहने वाला हो, चाहे नेपाल का रहने वाला हो, उसके मकान के आगे जब जमीन हुआ करती है, बेहतरीन उसमें गार्डन बना लिया करता है, बेहतरीन पार्क बना लिया करता है। कहीं पे बेला है, कहीं पे चमेली है, कहीं पे चंपा है, कहीं पे जूही है, कहीं पे नरगिस है, कहीं पे नस्तरन है। गर्ज़े की मिजाज इंसानी है, उस एतबार से मकान की तामीर किया करता है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने इतना बड़ा मकान बनाया है, इतना बड़ा मकान बनाया है।
اور یہ دنیا بہت زیادہ حسین ہے, یہ دنیا بہت حسن اس میں ہے, اس کے اندر بڑی رونائی ہے, اس کے اندر بڑی خوبصورتی ہے. اب آئیے ذرا سا دیکھیں, آپ تو گارڈن بنا لیا کرتے ہو, اللہ کائنات نے اتنا حسین بنایا ہے کہ آپ پورا دیکھتے نیپال چلے جاؤ, پورا انڈیا دیکھتے چلے جاؤ, کشمیر دیکھتے چلے جاؤ, ہماچل دیکھتے چلے جاؤ, آپ کو طرح طرح کے درخت نظر آئیں گے, طرح طرح کے باغات نظر آئیں گے, طرح طرح کے پھول نظر آئیں گے. اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے, مولا مکان ہم بھی بناتے ہیں, مکان یہ لوگ بھی بناتے ہیں, لیکن اے بار الہ ہم نے مکان بنایا ہے تاکہ ہم اس میں زندگی گزاریں گے, ہم نہیں رہیں گے, ہمارا بیٹا رہے گا, بیٹا نہیں تو پوتا رہے گا, آنے والی نسلیں رہیں گے, آنے والے مہمان رہیں گے, ہمارے اعزاء رہیں گے, ہمارے احباب رہیں گے. لیکن اے بار الہ یہ اتنا بڑا مکان, یعنی یہ سارا جہاں, یہ سارا عالم, یہ ساری دنیا, اے مولا آخر تو نے کس لیے بنایا ہے؟ اے مولا تو تو مکان سے پاک ہے, اے مولا تو تو جگہ سے پاک ہے, اے مولا تو تو اوپر سے پاک ہے, مولا تو نیچے سے پاک ہے, مولا تو شرق سے پاک ہے, مولا تو غرب سے پاک ہے, مولا تو شمال سے پاک ہے, مولا تو جنوب سے پاک ہے, تو تمام جہات شدہ سے پاک ہے, تو جسم و جسمانیات سے پاک ہے, تو مکان و مکانیات سے پاک ہے, تو متا و کیفا سے پاک ہے, تو اینا و عینا سے پاک ہے. اے بار الہ اتنا بڑا مکان آخر یہ تو نے کس لیے بنایا ہے؟ تو میرا رب جواب دیتا ہے, میرے بندو سنو سنو, ارے تم مکان بنایا کرتے ہو تاکہ تم زندگی گزارو, میں نے اتنا بڑا مکان جو بنایا ہے وہ اپنے لیے نہیں بنایا ہے بلکہ جناب محمد رسول اللہ کے لیے بنایا ہے, سید المرسلین کے لیے بنایا ہے, طاہر یاسین کے لیے بنایا ہے. آپریٹر صاحب آواز بڑھائیے, کم مت کیجیے, جتنا فل کر پائیے فل کر دیجیے. اتنا بڑا مکان اللہ عز و جل نے اپنے حبیب کے لیے بنایا, اپنے محبوب کے لیے بنایا, اور حدیث میں ارشاد فرمایا جاتا ہے لولا کا لما خلقت الافلاک والارضین, آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں زمینوں کو نہ پیدا کرتا, آسمانوں کو نہ پیدا کرتا, چاند کو نہ پیدا کرتا, ستاروں کو نہ پیدا کرتا, سورج کو نہ پیدا کرتا. اور اسی لیے مجدد مت ماضیہ مؤید ملت طاہرہ اعلی حضرت عظیم البرکت کنز الکرامت شہر بریلی سے گنگناتے نظر آتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے, مکی و مکان تمہارے لیے, زمین و زمان تمہارے لیے اور مکی و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے اور بنے دو جہاں تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے, مکی و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے اور بنے دو جہاں تمہارے لیے. اور اے نیپال اور بھارت کے خوش عقیدہ سنی مسلمانوں, بہت بڑھیا اور ٹھیک ٹھاک جگہ پہ یہ جلسہ رکھا گیا ہے کہ نیپال والے بھی چلے آئیں اور بھارت والے بھی چلے آئیں. ان کو نہ سفر کرنا پڑے, اپنے ملک میں ہے, ان کو زیادہ سفر نہ کرنا پڑے, چند کلومیٹر کی دوری پہ ہے. اللہ عز و جل نے اپنے نبی کے لیے اس سارے عالم کو بنایا ہے, اس ساری دنیا کو بنایا ہے. ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے, مولا یہ ساری چیزیں تو مصطفیٰ کے لیے ہے, یہ زمین مصطفیٰ کے لیے ہے, آخر ہم کس لیے ہیں, ہمارا وجود کس لیے ہے, ہمارا منہ کس لیے ہے, ہمارے بازو کس لیے ہے, ہماری زبان کس لیے ہے؟ تو اعلیٰ حضرت سرکار عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے اور بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہمارے یہاں تمہارے لیے, اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہمارے یہاں تمہارے لیے, اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. اب آئیے میں ایک بات اور بتانا چاہوں گا محترم حضرات, جب یہ زمین نبی کے لیے ہے, یہ آسمان نبی کے لیے ہے, یہ ساری خدائی نبی کے لیے ہے, اسی سے پتا چلا ہمارے نبی زندہ ہے, محبت سے کہہ دے سبحان اللہ. آپ یہ نہ سوچئے کہ زمین سے پتا چلا, آسمان سے پتا چلا, یہ بھی کوئی دلیل ہے. تو میں دو دلیلیں دینا چاہوں گا. ایک دلیل دلیل نقلی ہے اور ایک
दलील दलील अकली है। इन दलीलों से पता चला हमारे सरकार जिंदा है। आप कहोगे आखिर क्या कोई इनकार कर रहा है? इनकार करने वाले किताबों में लिख रहे हैं, वो छाप रहे हैं कि माज़अल्लाह नबी मर करके मिट्टी में मिल गए। ये इनका अकीदा है। अब आइए जरा सा देखें हमारा अकीदा क्या है। हमारे सरकार जिंदा है। दलील नकली का मतलब नकली घी न समझिएगा, नकली दूध न समझिएगा, नकली मलाई न समझिएगा, नकली खोया न समझिएगा, नकली मिठाई न समझिएगा, नकली सामान न समझिएगा। नकली का मतलब होता है जो दलील की कुरान और हदीस से मुबाहर हो, जो नस के जरिए दलील होती है, उसे दलील नकली कहा जाता है। और अकली का मतलब जो अकल में समझ आए। अब दलील नकली आप देखें, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे जिंदा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इन्नल्लाह तआला हर्रम अलल अर्दी अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबीउल्लाहि हय्युर ज़क। अल्लाह ताला ने जमीन पे हराम कर दिया है अंबियाए किराम के जिस्मों को खाए। अल्लाह के नबी जिंदा, इन्हें रोजी दी जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी जिंदा हैं, इन्हें रोजी दी जाती है। ये दलील नकली है। हमारा यही अकीदा है, आपका यही अकीदा है, उलमा का यही अकीदा है, शोरा का यही अकीदा है, हुफ़ाज़ का यही अकीदा है, कुर्रा का अकीदा यही है। आपने कहा किस बुनियाद पे? हमने कहा हदीस की बुनियाद पे। लेकिन आइए देखें, हमारे उलमा हो, हमारे शोरा हो, हमारे कुर्रा हो, हमारे हुफ़ाज़ हो, ख़वास अहले सुन्नत हो, अवाम अहले सुन्नत हो, सबका अकीदा यही है। और हज़रात जिन्होंने हदीस पढ़ी है उनका भी अकीदा वही है, और जिन्होंने नहीं पढ़ी उनका भी अकीदा वही। और लोग होंगे जो हदीस पढ़ते हैं लेकिन हदीस को समझते नहीं। आइए मैं बताऊं, हमारे शोरा का अकीदा यही। हम फैजाबाद में पढ़ाते हैं। फैजाबाद के बगल एक जिला सुल्तानपुर है, वहीं पे एक शायर हैं जिनको अजमल सुल्तानपुरी कहा जाता है। अजमल सुल्तानपुरी से हमने आलम तसव्वुर में सवाल किया, अजमल साहब एक बात ये बताइए, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहते हैं, उनकी हयात के बारे में? कहा हमारा अकीदा यही है, हमारे सरकार जिंदा हैं, हमारे नबी जिंदा हैं। हमने कहा बुखारी आपने नहीं पढ़ी, नसई आपने नहीं पढ़ी, मुस्लिम आपने नहीं पढ़ी, तिरमिज़ी आपने नहीं पढ़ी, मिश्कातुल मसाबी आपने नहीं पढ़ी। ये अकीदा आपको कैसे पता चला? उन्होंने जवाब दिया कि सुनो, क्योंकि हमने उलमा की गुलामी की है, उलमा की कदम बोसी की है, इसलिए मेरा अकीदा यही है। और मैंने अपनी नात में ये शेर लिख दिया है कि एक लम्हा के लिए, एक लम्हा के लिए आई थी उन्हें भी मौत, एक लम्हा के लिए आई थी उन्हें भी मौत, फिर हमेशा के लिए, फिर हमेशा के लिए उनकी मौत मर गई। सदका लेने नूर का उनके घर सहर गई, हजरत आमिना की गोद मुस्तफा से भर गई। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हीं के लिए जमीन आसमान ये सारी चीज है। ये दलील नकली है। अब दलील अकली आप जरा सा देखें, हम आ रहे थे, हमारे आने में थोड़ी सी ताखीर हो गई। रजाकारों ने कहा मोहम्मद कमाल अख्तर, आखिर आपने गोरखपुर से हमारे यहाँ पहुंचने में इतना टाइम कैसे लगा दिया? हमने कहा क्या करें, जैसे हम पहुंचे सोनौली के चौराहे पे, हमने सोनौली के चौराहे पे देखा एक शानदार ऐसे ही शामियाना लगा हुआ है, बेहतरीन फर्श बिछा हुआ है, कुमकुमे रोशनी दे रहे हैं, माइक चालू हालत में नजर आया। हमने देखा चौकियां रखी हुई है, वहां पे कुर्सी भी बिछी हुई है, वहां झंडियां भी लगी हुई है, झंडे भी लगे हुए हैं, कुछ बैनर लगे हुए हैं, कुछ बिल्ला वाले रजाकार घूम रहे हैं, कुछ स्टिकर भी लगे हुए हैं। हम बहुत देर तक घूर घूर करके ये सारा मंदिर देखते रहे। वो सुन्नी नौजवान हमारे सामने आए, कहा मोहम्मद कमाल अख्तर क्या देख रहे हो? हमने कहा ये शामियाना देख रहा हो, ये फर्श देख रहा हो, ये चौकी देख रहा हो। कहा आखिर क्या पहली बार आए हो? हमने कहा पहली बार तो नहीं आया हो। कहा अगर पहली बार नहीं आए, आखिर इस तरह गौर से क्यों देख रहे हो? हमने कहा ऐ सोनौली के कुशतीदा सुन्नी मुसलमान हो, एक बात ये बताओ, आखिर ये शामियाना किस लिए है? ये फर्श किस लिए है? ये चौकी किस लिए है? ये कुर्सी किस लिए है? ये माइक किस लिए है? ये लाइट किस लिए है? ये बत्तियां किस लिए है? उन सुन्नी
नौजवानों ने जवाब दिया, सुनिए हमारे एक बहुत मौजूद मेहमान अजमल उलमा हजरत अल्लामा अजमल हुसैन साहब की आमद है। उन्हीं के एजाज में शामियाना है, उन्हीं के लिए ये फर्श है, उन्हीं के लिए ये चौकी है, उन्हीं के लिए कुर्सी है, उन्हीं के लिए माइक है, उन्हीं के लिए लाइट है, उन्हीं के लिए झंडे हैं, उन्हीं के लिए बैनर है, उन्हीं के लिए झंडी है, उन्हीं के एजाज में ये सारी ज़ेबो ज़ीनत है, ये सारा डेकोरेशन है। हमने कहा सुरौरी के खुशअक़ीदा सुन्नी मुसलमानों, एक बात ये बताओ, आखिर शामियाना हटाया कब जाएगा, फर्श उठाया कब जाएगा, चौकी हटाई कब जाएगी, कुर्सी उठाई कब जाएगी, माइक को कब बंद कर दिया जाएगा, ये लाइट गुल कब कर दी जाएगी, कुमकुम बेनूर कब कर दिए जाएंगे, ये बैनर उतार कब लिए जाएंगे। उन सुन्नी जवानों ने कहा, सुनिए ये सारी ज़ेबो ज़ीनत हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान के लिए है। जब तक हमारा मेहमान मौजूद रहेगा ये शामियाना खड़ा रहेगा। ऐसा हरगिज़ ना होगा मेहमान मौजूद रहे और शामियाना को हटा दिया जाए, फर्श को उठा दिया जाए, चौकी को हटा दिया जाए। जब तक मेहमान मौजूद रहेगा ये लाइट चलती रहेगी, ये माइक चलता रहेगा, ये रोशनी ऐसे ही रहेगी। अरे सुन्नियों, पहला तशरीह व तमशीर कि चूंकि ये सारी दुनिया हमारे नबी के लिए है, ये जमीन बाकी है, पता चला नबी जिंदा है, ये आसमान बाकी है, ये तारे बाकी है, ये चांद बाकी है, ये शजर बाकी है, ये हजर बाकी है, ये दरिया बाकी है, हिमालय बाकी है, ये सारी खुदाई बाकी है और सारी खुदाई मुस्तफा के लिए है। मुस्तफा जिंदा है, इसलिए सारी दुनिया बाकी है। मौला ये दुनिया बहुत हसीन है, हुस्न है, रानाई है, लेकिन जब सब नबी के लिए, सब सरकार के लिए है, इसके मकीने अव्वल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। मकीने अव्वल मुस्तफा हैं, मुस्तफा का करम, इसी में हम भी रहते हैं। नबी का सदका हमारे उलमा रहते हैं, नबी का सदका आप लोग रहते हो, नबी का सदका आप लोग रहते हो। गर्ज़े की मकीने अव्वल मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अब आओ चल करके आला हजरत अज़ीमुल बरकत रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह की बारगाह में हाज़िर है। आला हजरत